आंध्र प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर के शिवाजी ने मरकजी बजट में पेश किए गए रेयर अर्थ कॉरिडोर के ऐलान पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इनका कहना है कि इस मंसूबे के बारे में कोई वाज़ेह तफसीलात मौजूद नहीं है। शिवाजी ने कहा कि पेट्रोल, केमिकल और सनती कॉरिडोर मंसूबों की तरह यह भी महज अवाम को गुमराह करने वाला ऐलान है और इस ऐलान से रियासत को कोई हकीकी फायदा हासिल नहीं होगा। ఆంధ్ర ఒరిస్సా తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి రేర్ ఎర్త్ క్యారిడర్ అని చెప్పి ఈరోజు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రకటించారు. అమ్మ, రేర్ ఎర్త్ క్యారిడర్లో ఏది ఎక్కడ ఎంత అవైలబుల్ ఉంది, సెమీ కండక్టర్లకు సంబంధించి, ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించి, చిప్పులకు సంబంధించిన ముడి సరుకు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఎంత డిపాజిట్ ఉంది, ఎన్ని మెట్రిక్ టన్నులు, ఎన్ని మిలియన్ టన్నులు ఉన్నది, ఏ ప్రాంతాలు ఉన్నదని ఏదన్నా ఒక మ్యాపు, ఒక డేటా మీరు ప్రకటించారా? ఇంతకుముందు 2014లో విభజన చట్టంలో పెట్రోకెమికల్ క్యారిడారు, పారిశ్రామిక ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్ అని ప్రకటించారు కదా. దానికి సంబంధించిన ఎటువంటి స్టెప్స్ కూడా మీరు ఇంతవరకు తీసుకోలేదు. ఇప్పుడేదో మళ్ళీ రేర్ ఎర్త్ క్యారిడార్ అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క ఐవాష్, కంటి తుడుపు ప్రకటన తప్ప దీనివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒరిగేది ఏమీ లేదని చెప్తా ఉన్నాం. మాది వ్యవసాయ ప్రధానమైన రాష్ట్రం, కోస్తా తీర ప్రాంతం, మాకు పోర్టులు ఇవ్వండి, రైళ్లు లింకు చేయండి, కొత్త లైన్లు వేయండి, దానివల్ల లాభం ఉంటుంది తప్ప ఇదంతా కూడా మాకు ఓఎన్జీసీ ఉంది బ్రహ్మాండ. विजयवाड़ा में यूनियन बजट पेश किए जाने पर मुख्तलिफ शोबों से रद्दमल सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश चैंबर्स के सदर पी भास्कर राव, एपी चैंबर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर बी राजा शेखर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के माहिर आर.वी. स्वामी ने बजट को कारोबार दोस्त करार दिया। उनका कहना है कि बजट काफ़ी मुतवाज़िन है और बजट में MSMEs को अहमियत दिए जाने से सनत, तिजारत और सियाहत के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। रियासत आंध्र प्रदेश की मईशत को भी नई रफ्तार मिलेगी। First of all, let me congratulate Finance Minister Nirmala Sitharaman garu for presenting the 9th consecutive budget. This is a record in Indian democracy. And overall, the budget is very balanced. You know, lot of uncertainties are there in the world economy now. If you see one side, the wars are continuing, Ukraine-Russia war, Israel, Gaza, then now USA, Iran, USA, Venezuela, like this, China, Taiwan. So lot of tensions are there one side. Commodity market is in doldrums. Similarly, overall the economy is also not in good shape. The growth rates of the various countries, if you see, they are all very limited. Even in this situation, last year she has presented that almost the growth rate is around 7%. And first of all, we should appreciate the finance minister to contain the fiscal deficit to 4%, less than 4.5%. So she promised 4 years back that she will bring down. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कॉन्टिनेंटल कैरियर्स के चेयरमैन विपिन वोहरा ने मरकजी बजट को इंतहाई तरक्की पसंद करार दिया। उनके मुताबिक बरामदात में इजाफा होगा और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को फरोग मिलेगा और मुल्क की मईशत को मजबूती मिलेगी। This budget, which has been presented by the finance minister, is a very, very progressive budget. The way she has handled the export-import trade, the export is going to increase. There are a lot of changes which she has mentioned. The main few of the things are like they have agreed to spend 10,000 crore on container building, in India. Now that's a big thing, which we would like to have containers to be manufactured in India. Right now, there are a lot of times when the export picks up, there is always a shortage of containers. So this will give a big boost to the country. Now, other thing is simplification of the custom laws and all, simplification of customs, a lot of duties have been reduced, a lot of duties have been reorganized, and a lot of incentives have been given to AEOs also. AEO approvals have been simplified and a lot of, credit has been given to the exporters. If they are AEO approved, they will get 30 days credit of the duties and all. And duties also have been simplified. This is really a very big boost to the trade. Now, even in SEZ, they have given a lot of things, a lot of incentives and other things to the trade.
Of course, the details are definitely going to come later. And, in this budget, they've tried to simplify a lot of things, in the आंध्र प्रदेश की गुंटूर में हफ्ते को काफी कशीदगी रही। हंगामों के बीच हफ्ते की रात पुलिस ने वाईएसआरसीपी लीडर अंबाटी रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी अंजाम देने वाले एहलकारों के काम में रुकावट डालने की पादाश में कार्रवाई की गई। अंबाटी पर वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर इश्तियालंगेज तनकीद के इल्जाम हैं, उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस ने बताया कि गुंटूर जिला TDP सदर की शिकायत पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं और इल्जामात कर दिए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद अंबाटी रामबाबू को नलापाड़ू पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इसी दौरान उनकी रिहाइशगाह के करीब कशीदगी बरकरार रही और पुलिस ने सख्त पहरा रखा है। गुंटूर में वाईएसआरसीपी लीडर अंबाटी रामबाबू के मकान पर कशीदगी देखने में आई। इत्तलात के मुताबिक TDP कारकुनान ने अंबाटी रामबाबू के घर और दफ्तर पर हमला किया, शीशे, गाड़ियों और फर्नीचर तोड़ दिया, जबकि दफ्तर को आग लगाने का भी इल्जाम है। बताया यह जा रहा है कि सैकड़ों कारकुनान घंटों तक उनके घर के बाहर मौजूद रहे, जिसके बाद पुलिस ने अंबाटी रामबाबू को गिरफ्तार करके सख्त जद्दोजहद के बाद वहां से मुंतकिल किया। वाकई के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। उधर ऐसा भी कहा जा रहा है कि सत्तनापल्ली YCP इंचार्ज भार्गव रेड्डी के लोगों ने अंबाटी रामबाबू के दफ्तर को आग लगा दी। बताया गया है कि YCP में अंबाटी मुखालिफ धड़ों ने TDP के एहतजाज के दौरान मौके को गनीमत जानकर यह कारस्तानी अंजाम दी। गुंटूर में वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू के मामले पर सियासी तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। इल्जाम है कि उनके घर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया है। वाईएसआरसीपी का कहना है कि लड्डू तनाज़े से तवज्जो हटाने के लिए इस मामले को हवा दी गई है और पुलिस की मौजूदगी में इश्तियाल अंगेजी हुई है, जिससे पूरे गुंटूर में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। కాదు చంద్రబాబు గారు, గుంటూరు సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి దారుణం అయితే 10 గంటలు దాటిపోయినప్పటికీ మొత్తం మాజీ మినిస్టర్ అంబటి రాంబాబు గారికి సంబంధించినటువంటి హౌస్ ను మొత్తం తగలబెట్టారు. ఆయన కాన్వాయ్ని కూడా తగలబెట్టారు. ఆ తర్వాత కూడా ఆగకోకుండా వాళ్ళ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఫర్నిచర్ ను కూడా ధ్వంసం చేసినట్టు తెలుస్తా ఉంది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ దాదాపు ఇండియాలో 10 अनागापल्ली में आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला अनिता ने वाईएसआरसीपी लीडर अंबाटी रामबाबू पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अंबाटी के रिमार्क्स इंतहाई नामुनासिब और काबिल मजम्मत हैं। होम मिनिस्टर ने खबरदार किया है कि अमन अमान में खलल डालने और बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की तौहीन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ రాజకీయాలు ఇంతలా దిగజారిపోతున్నాయా? రాజకీయ నాయకుడు పదవుల గురించి, లేకపోతే వాళ్ళ నాయకుడు తాలూకా ప్రోత్సాహం గురించో, లేకపోతే వాళ్ళ నాయకుడు తాలూకా మన్ననల్ని పొందడానికి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఇంతలా దిగజారుతున్నారా? నిజంగా చాలా బాధ అనిపించే సన్నివేశం. ఎందుకంటే ఒక మంత్రి చేసిన వ్యక్తి, రాజకీయంగా చాలా పదవులు చేసిన వ్యక్తి, చాలా సీనియర్ మోస్ట్ నాయకుడు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు. నేను ఇంతకు ముందు అంబటి రాంబాబు గారు అనేదాన్ని. वाईएसआरसीपी के कौमी तर्जुमान भारत ने अंबाटी रामबाबू पर हमले की सख्त मजम्मत की। उनका कहना है कि इस वाक़े ने आंध्र प्रदेश में अमन अमान की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वजीर को उनके अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था तो आम शहरियों की सलामती पर भी सवाल खड़े होते हैं। YCP ने इस मामले में मरकजी वजारत दाखिला से फौरी मुदाखिलत की अपील की है। The attack on YSR Congress Party senior leader, former Minister Ambati Rambabu, clearly exposes the failure of law and order in the state of Andhra Pradesh. This is a deliberate attempt, attack with thousands of TDP hooligans went and attacked Ambati Rambabu Garu's house. Nearly 5 hours of high drama went in there. The police seems to be as spectators there when this mob went along with the sitting MLA, lady MLA, to the अन्नामाया जिले के रायचोटी में हफ्ते की शाम साबिक रियासती वजीर अंबाटी रामबाबू के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। TDP की जानिब से मुजाहिरे मुनज़्ज़म किए गए और अंबाटी के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर राजमपेट पार्लिमानी जिला सदर सोगवासी प्रसाद बाबू की क़ियादत में पार्टी कारकुनान ने अंबाटी रामबाबू का पुतला नजर आतिश किया और फौरी माफ़ी मांगने का अंबाटी रामबाबू से मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इख्तिदार खोने के बाद बौखलाहट में वाईएसआरसीपी लीडरान गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। ఈరోజు
ఇంకొక 20 ఏండ్లు చంద్రబాబు నాయుడిని దూషించిన ఇంకొక 20 ఏండ్లు అధికారం రాకుండా ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. వాళ్ళ నిజమైన వ్యక్తిత్వం వాళ్ళు ఈరోజు కనిపిస్తుంది. పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడుతూ సిగ్గే లేకుండా అంబటి రాంబాబు నోటికొచ్చినట్లు करनूल शहर में शब बारात के लिए तैयारियां जारी हैं। कब्रिस्तानों में तमाम दरकार इंतजामात किए जा रहे हैं। एपी हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली खान ने इस ज़िमन में मुनसिफ टीवी से बात की। उन्होंने बताया कि शहर के तमाम कब्रिस्तानों में सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। बताया कि वजीर टीजी भरत के ताउन से करनूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बाज़ाब्ता तौर पर सफाई की दरख्वास्त की गई, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने खुसूसी तौर पर अमले को तैनात किया। इस मुहिम के तहत कचरा हटाया गया और गैर ज़रूरी झाड़ झंकार साफ की गई और शब बारात पर कब्रिस्तान आने वाले अवाम को साफ माहौल फराहम किया गया है। आज फरवरी की 1 तारीख है, कल अरफा है सुबह और परसों बड़ी रात का हमारा जो भी लोग अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करने के लिए कब्रिस्तानों को आते हैं, उनके लिए साफ़ सफाई का काम हमारे टीजी भरत साहब के जानिब से हमारे करनूल के मुस्लिम लीडर्स जो भी है मिलकर एक अर्जी हम लोग उनके लिए रखे थे। तो उस अर्जी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कमिश्नर साहब को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। उस इन्फॉर्मेशन के दौरान जो भी बड़े कब्रिस्तान हमारे करनूल के हैं, सब कब्रिस्तानों में जैसे कि बुदारपेट का कब्रिस्तान है, बटऊ है, याहू बादशाह का कब्रिस्तान है और ये मौला मशीन है, रोज़ा है, सभी कब्रिस्तानों में साफ़ सफाई का काम आज 1 तारीख के दिन मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें लाइटों का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम भी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश हमारे करनूल कमिश्नर साहब की तरफ से किया जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी सहूलतें हैं लोगों को आने के लिए, यानी अंदर के तरफ से लेकर इधर रोड के तरफ तक का साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया गया है। हर चीज़ की इसमें जो है इंटरेस्ट से करके ये 4 दिनों में कंप्लीट मुकम्मल हो गया है। तो मैं फिर एक बार हमारे मिनिस्टर साहब का और कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब इस साल बटऊ में भी हम लोग पिछले 2 महीने पहले जो हमारे मिनिस्टर साहब को इन रिक्वेस्ट करे थे कैमरेस के, इस आज के दिन 3 कैमरे उधर 360 डिग्रीज़ के विथ हाई रेजोल्यूशन के साथ और एक्सेस टू मोबाइल 3 जगह का एक्सेस रहेगा। इसके नेल्लूर से खबर है, इतवार को रियासती वजीर कानून और जिला इंचार्ज वजीर NMD फारूक ने नेल्लूर का दौरा किया। नेल्लूर आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो वेंकटाचलम मंडल के कसमूरू में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए पहुंचे थे। नेल्लूर R&B गेस्ट हाउस में सर्वेपल्ली के रुकन असम्बली सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी, RDO अनुषा, पार्टी कारकुनान और दीगर ने रियासती वजीर का खैर मकदम किया।